Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. Today we are going to understand about the Rajasthan's marriage registration bill. A very important yet very controversial bill which has been in news. All these bills, policies, schemes are really important when it comes to your preliminary examination and as well as the GS papers in mains. मेंस के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में ये बिल्स और जो एक्ट्स और पॉलिसीज और स्कीम्स गवर्नमेंट निकालती है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. इसीलिए इसको हम डिटेल में आज समझेंगे. व्हाई दिस बिल इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट हैज बीन कंट्रोवर्शियल, ऑल ऑफ दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल. Okay, let's get started. शुरू करते हैं आज का लेक्चर. So Rajasthan's marriage registration bill, here it was in news because it first of all it is related to paper 1, role of women and women's organization, population and associated issues. That is the sub syllabus of paper 1 in mains. Okay. So Rajasthan government took back the Rajasthan compulsory registration of marriage amendment bill of 2021. तो राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया, जो मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अमेंडमेंट बिल है 2021 का, उसको वापस ले लिया. This bill amended the already existing the compulsory registrations of marriage bill. जो राजस्थान का compulsory registration of marriage bill था ना, उसमें कुछ amendments पास किए गए थे जो controversial थे, and that is why this bill was taken back. Because it got embroiled in the controversy for making it mandatory. Mandatory means compulsory to register all marriages, including the minor ones also. So it was promoting the minor girls marriage. So it was embroiled in controversy. तो इसमें इस बिल में अमेंडमेंट के बाद ये कहा गया था कि हर तरीके की मैरिज को रजिस्टर किया जाएगा, चाहे वो माइनर्स की मैरिज क्यों ना हो, अंडर 18, अंडर 21. ओके, इसको माइनर मैरिज माना जाता है ना, तो विद इन 30 days आप इसको रजिस्टर करो. So that was controversial amendment. Okay, so this bill was amending section 5 and section 8 of the act, dealing with the appointment of marriage registration officers and duty of parties to marriage to submit memorandum for registration. Section 5 dealt with marriage registration officers. Section 8 dealt with duty to submit memorandum. ठीक है, और for registration, write it down. Memorandum for what? Memorandum for registration by the marriage parties. Marriage parties यहाँ पर minors के केस में parents होंगे within 30 days of the wedding. These two sections were getting amended by this amendment bill. Okay, so this amendment was authorizing the women above 18 years to provide information of their marriage on their own. But if the woman is below 18 years, then her parents will provide the information. So amendment authorizes that minor marriage have to be registered. So that is promoting the minor marriage, which is very wrong. Okay, तो ये amendment जो था वो section 8 को amend कर रहा था. Let us understand the controversial part of this amendment. एक यूपीएससी सीएसई के एस्पिरेंट को क्या चाहिए होता है एग्जाम क्रैक करने के लिए? सही गाइडेंस, टेस्ट सीरीज ताकि प्रैक्टिस से वो परफेक्ट बन सके, सही रिसोर्सेस, डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए एक मेंटोर जो कि उसके सारे डाउट्स, कंसेप्चुअल डाउट सॉल्व कर सके, और आंसर राइटिंग की ट्रेनिंग प्लस कवरेज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स. और ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको फुलफिल किए जाएंगे. अनअकैडमी पर आपको मिलेगा स्ट्रक्चर्ड जीएस ऑप्शनल कोर्सेज, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, टेस्ट सीरीज 100 से ऊपर टेस्ट सीरीज, जितना मर्जी चाहे उतना प्रैक्टिस कीजिए साल भर में, 20+ हाई क्वालिटी नोटबुक्स जो कि यूपीएससी सीएसई की सिलेबस को कवर करेगी प्री से मेंस तक, फ्रॉम स्क्रैच टिल द बेसिक्स, एंड इट विल बी डिलीवर्ड टू योर हाउस. आपके घर तक ये बुक्स पहुंचाई जाएंगी ताकि आप अपने घर के कंफर्ट में विदाउट एनी हर्डल तैयारी कर सकें. डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं ताकि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हो सारे क्लियर हो जाएं और आपके जो फाउंडेशनल नॉलेज है वो स्ट्रांग हो जाए, यानी कि जो कोर है वो स्ट्रांग हो जाए. और करंट अफेयर्स का एक सिंप्लीफाइड कोर्स जिसमें सभी सोर्सेज से, चाहे वो गवर्नमेंट वेबसाइट हो या न्यूज लेटर्स हो या न्यूज़पेपर्स हो या मैगजीन्स हो, हर सोर्स से करंट अफेयर्स आपके कवर करके आपको दिए जाएं. यहाँ तक कि अनअकैडमी पर 21 अक्टूबर से नए ऑप्शनल कोर्सेज भी लॉन्च हो रहे हैं ताकि आपके ऑप्शनल की जिम्मेदारी भी आपके कंधों से उतारकर हम अनअकैडमी पर ले लें और आपको एक सिंप्लीफाइड मैनर में पेपर 1, पेपर 2 जो ऑप्शनल के होते हैं उनकी तैयारी करवाएं, ताकि आपके ऊपर कोई बर्डन ना रहे कि कहाँ से पढ़े, क्या रिसोर्स यूज करें, कितना पढ़ें, कितना नहीं पढ़ें, प्रैक्टिस कैसे करें, आंसर राइटिंग कैसे समझें. ये सारी टेंशन आप हमें दे दीजिए अनअकैडमी पर. ज्योग्राफी से लेकर मैथमेटिक्स तक सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शनल जो टॉप ऑप्शनल्स हैं
स्कोर वाइज वो हम कवर करवाएंगे। 21 अक्टूबर से इसके नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। यहाँ तक कि आज से दैट इज 13 अक्टूबर से यूपीएससी के नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी प्लस पर। 2022 के स्टूडेंट्स के लिए भी, 2023 के स्टूडेंट्स के लिए भी। और ये बैचेस हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। आप अपने सुविधा अनुसार इन बैचेस में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप कोड यूज करेंगे अर्पिता 10 तो आपको मिलेगा डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी प्लस पर। और अगर आप मेंस 2021 की तैयारी में लगे हुए हैं तो हमने 3 मंथ्स का ऑल इंडिया रैंक 1 मिशन बैच जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको आंसर राइटिंग ट्रेनिंग करवाएंगे टॉप एजुकेटर की मदद से, वो एजुकेटर्स जिन्होंने खुद भी ये एग्जाम क्लियर किया है। ये बैच शुरू हो रहा है 18 अक्टूबर से। अगर आप 2022 की भी तैयारी कर रहे हैं फिर भी आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये आपके लिए एक ट्रेनिंग बैच होगा। अनअकैडमी पर हम प्रोवाइड करते हैं LMP लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको 1-on-1 पर्सनल कोचिंग दी जाती है, डाउट सॉल्विंग सेशन आपके लिए कंडक्ट करवाया जाता है, आपके आंसर शीट्स को इवैल्यूएट किया जाता है, चाहे वो प्रीलिम्स के हो या मेंस के हो। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जाती है और एक स्टडी बूस्टर सेशन होता है जिसमें आपके कॉन्सेप्चुअल फंडामेंटल नॉलेज को बिल्ड किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा प्री 2021 में आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस काफी आए थे, तो जिनका कोर स्ट्रॉन्ग था उनके लिए प्री में 90 अबव स्कोर करना इजी रहा होगा। बट जहां कोर हमारा ढीला हो जाता है, वीक हो जाता है, वहां पर हमारी पूरी बॉडी, आप देखोगे बॉडी में भी जो कोर एरिया है, स्टमक का एरिया, थाइस का एरिया, कोर एरिया वीक होता है तो काफी प्रॉब्लम होती है अपने आप को पिकअप करने में। पर जब कोर स्ट्रांग होता है तो आप कितना भी आपके ऊपर प्रेशर डाला जाए आप उसको बहुत इजीली हैंडल कर लेते हो। तो अनअकैडमी पर हमारा मिशन रहता है आपके कोर को स्ट्रांग करना, आपके ब्रेन के कोर को स्ट्रांग करना। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी प्लस पर। कोड यूज करना मत भूलिएगा अर्पिता 10, ताकि आपको मिल जाए 10% का स्ट्रेट अवे डिस्काउंट। अगर आप फेस कर रहे हैं हर्डल अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन को लेने में, तो यहाँ पर अनअकैडमी आपको देता है लोन फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन ऑन अनअकैडमी, जहां पर इस लोन के फॉर्म को आप फिलअप करेंगे 2 घंटे के अंदर आपको लोन अप्रूव किया जाएगा। 0% इंटरेस्ट रेट पे, 0 प्रोसेसिंग फीस, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कम से कम पेपर वर्क, ताकि आप स्ट्रेस आउट ना हो लोन फॉर्मेलिटीज को फिल आउट करने के लिए, और पेमेंट का फ्लेक्सिबल टेन्योर भी दिया जाएगा। तो हमने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लोन का फॉर्म भी दिया है। कोड यूज कीजिएगा अर्पिता 10, ताकि इस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी प्लस और अपनी प्रिपरेशन को कोर वाइज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। घबराइएगा नहीं, अनअकैडमी पर आपकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। नाउ व्हेन वी लुक एट द ओरिजिनल प्रोविजन इन दिस पर्टिकुलर लॉ, the original provision in the law required compulsory registration of marriage within 30 days if the bride and bridegroom were under 21 years of age. Original provision इस एक्ट का ये था कि अगर ब्राइड और ब्राइडग्रूम 21 साल से कम एज के हैं तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन उनकी शादी की 30 दिन के अंदर शादी के करना ही पड़ेगा, और ये पेरेंट्स करेंगे। बट अमेंडेड वर्जन क्या बोलता है? What does the amended version says? Amended version says that the parents must register the marriage within 30 days of wedding if bride is under 18 and groom is under 21. That means you are looking at a minor marriage over here, which is not allowed. So why they have provided this in the amended version of the bill? That is the controversy. यही तो controversy है। समझ आ रही है बात? एज क्राइटेरियन मेन और विमेन दोनों के लिए सेम था इसके अंदर, यहाँ पर ओरिजिनल प्रोविजन में। यहाँ पर आप ब्राइड को अंडर 18, ग्रूम को अंडर 21, आप माइनर मैरिज की बात कर रहे हो, ठीक है? तो ये कंट्रोवर्सी थी। आई होप आपने ये ड्रॉ कर लिया है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज ड्रॉ इट इन योर रजिस्टर, ओके? नाउ इफ यू लुक एट दिस, अगर आप यहाँ पर देखोगे, दिस बॉक्स सेज, ये बॉक्स क्या बोलता है? इट सेज, अब इट टॉक्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 2006. Here Supreme Court said, we are of the view that marriages of all persons, underline this, marriages of all persons who are citizens of India, जो कि भारत के नागरिक हैं, सभी वो लोग जो भारत के नागरिक हैं, belonging to various religions, अलग अलग religions, जो भी religion को follow करते हैं, they should be made compulsorily registrable, यानी कि किसी भी इंसान की शादी भारत में किसी भी religion से वो belong करता हो, अगर वो इंडिया का citizen है तो उसकी शादी को register करना पड़ेगा in their respective states, जहाँ शादी हुई है वहां पर, जहाँ पर शादी को solemnize किया गया है। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ? Now what does the compulsory registration of marriages act 2009 से, अब ये जो 2009 का compulsory registration of marriage act है, ये क्या बोलता है? Parties, or in case the parties have not completed age 21 years, then parents, or as the case may be, guardian of the parties shall be responsible, जो गार्जियन है या पेरेंट्स है पार्टीज के, अगर वो 21 साल से कम है जिनकी शादी हुई है, तो देयर पेरेंट्स और गार्जियन shall be responsible to submit the memorandum of registration
within a period of 30 days of the wedding from the date of solemnization of marriage to the registrar within whose jurisdiction marriage has taken place. ठीक है, उस रजिस्ट्रार को आप मेमोरेंडम सबमिट करोगे 30 दिन के अंदर अंदर. पॉइंट क्लियर हुआ? Now here what does Prohibition of Child Marriage Act 2006 says? इसी time period में Child Marriage Act, Prohibition of Child Marriage Act was passed. This says an act to provide for the prohibition of solemnization of child marriages and for matters connected therewith. Child means a person who, if a male has not completed 21 years of age, child का मतलब वो इंसान अगर मेल है तो वो अभी 21 से कम एज का है, ठीक है, और अगर फीमेल है तो वो कौन सी एज से कम का है? 18 एज से कम की है, तो उसे हम चाइल्ड मानेंगे. Okay, and what is the amendment saying in this bill? It allows parents of girls below the age of 18 and boys below the age of 21 to register their children's marriage within 30 days. So that is the controversy. यही तो controversy है. Why you are solemnizing a minor marriage when you are banning it altogether? Why the amendment? अब ये amendment निकाला ही क्यों गया? Because state government is saying that states, the Supreme Court's judgment of this 2006 in Seema versus Ashwani Kumar case, it had made it compulsory to register all marriages. इस केस में तो ये कहा गया था ना कि सारी शादियों को रजिस्टर किया जाए, including child marriages of Indian citizens. Amendment is going to protect legal rights of the children. जो हम amendment कर रहे हैं उससे बच्चों की जो legal rights हैं हम उसको protect कर रहे हैं, ठीक है. In case of breaking up of marriage or anything like that or dowry, we are protecting the legal right of the children. पॉइंट क्लियर हो रहा है? बट आप इससे एक तरीके से इस अमेंडमेंट से जस्टिफाई कर रहे हो कि ठीक है बच्चों की शादी हो रही है, मतलब इस चीज को एडमिट कर रहे हो, यू आर एडमिटिंग दैट मीन्स. Okay, such a law would be of critical importance to various women. Okay, there are so many women related issues like prevention of child marriage, ensuring minimum age of marriage, prevention of marriage without consent, checking illegal bigamy or polygamy. तो इतने सारे इश्यूज होते हैं, विमेन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, आप उसको तो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, उसको एक तरीके से एडमिट कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो. That is the issue, that is the controversy which is related to this amendment. Now what does the government say? State government is saying that registration of child marriages would help in their faster annulment. अगर child marriage register होती है तो हम उसे पकड़ लेंगे, we will get hold of that child marriage if it is getting registered, and then we will very easily annul it and help the government reach out to more victims, especially the widows. This is the statement given by the government. ओके, पॉइंट क्लियर हुआ? नाउ व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस मूव? इस मूव का इम्प्लीकेशन क्या है? इस अमेंडमेंट का इम्प्लीकेशन, असर क्या होगा? इम्प्लीकेशन मीन्स असर, इम्पैक्ट. If this amendment is passed, it would open the floodgates for child marriage in the state because it is giving validation to it. Okay, compulsory registration of child marriage means you are legitimizing the child marriage. So activists are against it. Activists तो इसके बिल्कुल against जा रहे हैं. ओके, पॉइंट क्लियर हो रहा है? सो दिस इज द होल एक्ट ऑल अबाउट. ये पूरा आपका एक्ट है. नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन मेंस? जीएस पेपर 1 में आप किस तरीके का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्वेश्चन कैन बी सजेस्ट द वेज और मेथड्स, सजेस्ट द वेज और मेथड्स टू काउंटर चाइल्ड मैरिजेस, टू काउंटर चाइल्ड मैरिजेस इन इंडिया. भारत में चाइल्ड मैरिजेस रोकने के वेज या फिर मेथड सजेस्ट कीजिए, मेजर्स सजेस्ट कीजिए. दिस कैन बी द क्वेश्चन इन जेएस पेपर 1, इन एसे पेपर, इन योर इंटरव्यू राउंड, इवन इन योर जीएस पेपर 2. ओके, सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन टुडे. इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है? अनअकैडमी लेकर आया है ऑल इंडिया बेस्ड फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट यूपीएससी सीएसई कॉम्बैट, जो कि कंडक्ट होगा 17 अक्टूबर 2021 को सुबह 11 बजे. ये टेस्ट जो होगा वो हिस्ट्री और पॉलिटी स्पेशल होगा, यानी कि क्वेश्चंस हिस्ट्री और पॉलिटी से पूछे जाएंगे. देखिए ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, आपको कुछ पे नहीं करना है, प्लस आपको चांस मिल रहा है स्कॉलरशिप जीतने का फ्रॉम अ पूल ऑफ ₹4 करोड़. तो आपका इसमें कोई घाटा नहीं है, बल्कि आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगी, आपको स्कॉलरशिप मिलने का चांस मिलेगा, प्लस आपकी प्रैक्टिस होगी, एग्जाम का पैटर्न समझ आएगा, क्वेश्चन जितने सॉल्व करोगे प्रैक्टिस उतनी होगी, परफेक्शन भी उतनी ही आएगी. तो इस
टेस्ट में इनरोल जरूर कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, 1 घंटे का टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे और टेस्ट के बाद आपको आपके वीडियो सॉल्यूशंस, ऑल इंडिया रैंक भी पता चलेगी और स्कॉलरशिप स्टेटस भी पता चलेगा। लिंक पे क्लिक कीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे दिया है, इस लेक्चर के नीचे, और कोड यूज करना है इनवाइट कोड अर्पिता10। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स में ये टेस्ट आपका ऑपरेट होगा, तो आज ही इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है।